तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. Today we are going to learn a sutra. Bho Bhago Agho Apurvasya Yoshi. Now in the sutra, Bho Bhago Agho Apurvasya Yoshi, there is an anuvritti from Ro Supi. From Ro Supi, we will take Ro. Here, the word Ro stands for R, and it is mentioned that whenever Bho means Bhos, Bhago means Bhagos, Agho means Aghos, and Apurvasya, Avarna with its all 18 forms, except Pluta, because already we have seen whenever Plut is there, it becomes Prakruya. So except Pluta, Rasva and Dirgha both, before plus sign, when such is there, and in front of that Ashi is there, Ash Pratyahar. At that time, this or Sa from Bhagos, Bhos, Aghos, so that becomes Ya. In short, we can say before plus Bhagos, Aghos, or A, Rasva or Dirgha is available, plus in front of that Ash Pratyahar is there, then that Sa which is available, that becomes Ya. For example, Bhos plus Devahar. In that Sa will change to Ra according to Saso, Jisho, Ho, Ruhu. We will find that R, Bhor plus Devaha, that R will change to Ya with the help of Sutra Bho Bhago Agho Apurvasya Yoshi. The sutra says that whenever before plus sign, if Bhos, Bhagos, Aghos, or A is there, and in front of that Ash Pratyahar is there, kindly change that R into Ya. Hence it becomes Bhoi plus Devaha. Now after making Bhoi Devaha, one more new sutra is there, Hali Sarvesham. Whenever in front of Ya, you will find Hal Pratyahar is there. Means any Vyanjan is there, that Ya gets dropped. Just like Lopaha Shakalyasya. But in Lopaha Shakalyasya, it was Swar, Ash Pratyahar. Here they have completely mentioned Hal. So whenever Hal Pratyay, any Vyanjan is available in front of that Ya gets dropped. Bho Bhago Agho Apurvasya. Yasya Lopaha Syat Hali. Means the condition is clear. Bho Bhago Agho or A should be there before Ya, and in front of that Hal should be there. Then Yasya Lopaha, Ya letters Lopaha will be there. So it will be Bhodeva. Next example is Bhagos Namaste. Same steps are there. Bhagos Namaste, Sasa Jusho Ho Rohu. Sa will change to Ra. Bhagor Namaste. In the Bhagor Namaste, that Ra will change to Ya with the help of Sutra Bho Bhago Agho Apurvasya Yoshi. Because Bhagos is there, and in front of that Ash Pratyahar is there. Just because of that, R will change to Ya. Now this change, we will use Hali Sarvesham. In Hali Sarvesham, in front of Bho Bhago Agho, if Hal Pratyahar Varna is there, Ya gets dropped. या का लोप हो जाएगा, इसलिए भगो नमस्ते ऐसा उसका फॉर्म यहाँ पर भी बन गया। अघोष में भी सेम चीज है। अघोष के स का जो है वो ससज शो हो रोहू से स का र हो जाएगा,
और जैसे स का र हो गया वो र का य भी हो जाएगा भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी से, क्योंकि अघो र के आगे याही, याही ये जो है वो अश प्रत्याहार का वर्ण है, तो र का हम लोगों ने य कर दिया यह सूत्र से। अभी य का हमें क्या करना है, लोप करना है। तो कौन से सूत्र से करेंगे, हली सर्वेशम सूत्र से करेंगे। तो अगर हली सर्वेशम से मैं लोप कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हली सर्वेशम से लोप करने के बाद यह चला जाएगा, तो बचेगा क्या, अघो याही। अभी जो उदाहरण है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे देवास इह, मतलब देवाहा इह है, देवाहा सु और जैसे माउंट, उसमें हम लोग जब भी देखते हैं तो जैसे अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं, जैसा देवास है। ससजुषो को रोहू से स का र हो जाएगा देवार प्लस इह। अभी यहाँ पे जो र है, यह र का य किया भो बगो अघो अपूर्वस्य, बट यहाँ पे अपूर्वस्य है, मतलब र के पहले यहाँ पे हमें देवा का आ दिख रहा है, जो अ के दीर्घ रूप में आता है। इसीलिए हम लोग ने देव, ये देवा वर्ड का आ है पूर्व में, इसीलिए, और सामने अश प्रत्याहार, इसीलिए र का य कर दिया। अब तक भो था, भोस भगोस या अघोष था, इसके लिए हम लोग र का य कर रहे थे, बट यहाँ पे अपूर्व है, मतलब र के पहले अवर्ण का फॉर्म है, तो वो दीर्घ भी चलता है और ह्रस्व भी चलता है, तो यहाँ पे दीर्घ है। ह्रस्व होता तो फिर भी चलता था। सिर्फ यहाँ पे एक चीज बराबर से अंडरस्टैंड करनी है कि इसके पहले जो सूत्र सीखा था उसमें कंडीशन क्या था, अतो रोरप लता दप लुते, दो रस्व अ के बीच में जब भी विसर्ग आता है तभी विसर्ग का उ होता है। बट यहाँ पे वैसा पॉसिबल है, क्योंकि अपूर्वस्य कहा है और आगे अशी प्रत्याहार कहा है, तो यहाँ पे भी दो अ के बीच में विसर्ग आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में दो अ के बीच में जब भी विसर्ग आ रहा है तभी हम क्या फॉलो करेंगे, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि दो अ के बीच में विसर्ग आ गया है, तभी हम लोग अतो रोर प्लुता द प्लुते ही फॉलो करेंगे। बट दो अ में से पहले वाला रस्व अ है और बाद वाला रस्व अ छोड़ के कोई भी अश प्रत्याहार है, फिर वो आ रहे या कोई भी प्रत्याहार रहे, दीर्घ अ भी चलेगा यानी आ, या बाकी भी कोई अश प्रत्याहार का वर्ण चलेगा, तभी यह सूत्र हम लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा हुआ है देवार इह, तो एक तो र के पहले यहाँ पे आ है, दीर्घ अ है, वहां पे रस्व अ होता तो फिर भी चलता था, बट बाद में प्लस के बाद में रस्व अ छोड़कर कुछ भी चलेगा। अगर रस्व अ है तो अतो रोर प्लुता दप्लुते आएगा, और वो छोड़कर कोई भी अश प्रत्याहार का वर्ण है तो यह सूत्र फॉलो करेंगे। यहाँ पे इह है, रस्व अ छोड़ के आया हुआ वर्ण ई है, इसलिए हम लोगों ने भो बगो अघो अपूर्वस्य योशी फॉलो किया, और र का य हो गया यहाँ पे, इसलिए देवा य इह हो गया, और उसमें भी हम लोगों ने य को जो है वो ड्रॉप कर दिया, किससे, लोपह शाकल्य से। द रीजन बिहाइंड लोपह शाकल्य, रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर डूइंग लोपह शाकल्य से, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो है वो इह है, यानी इह, यह ई स्वर है, तो यहाँ पे हली सर्वेशाम नहीं आ सकता है। हली सर्वेशाम में प्लस के बाद हमें हल चाहिए, तो यहाँ पे हली सर्वेशाम की जगह पे स्वर वर्ण है, तो अश प्रत्याहार के लिए जो लोपह शाकल्य से है वो फॉलो करेंगे हम लोग। और लोपह शाकल्य से हमें क्या कहता है कि वो भी य का लोप करने के लिए कहता है, बट कंडीशन क्या है उसमें कि देवाय जो य है उसके पहले अ चाहिए, और बाद में जो है वो अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप उसका लोप कर सकते हो। तो यहाँ पे य का लोप जो है वो हली सर्वेशाम से नहीं हुआ है, लोपह शाकल्य से हुआ है, और मुझे आंसर मिला है देवा इह, और यह आंसर मिलने की वजह से ये मेरा सूत्र जो है वो यहाँ पे पूरा हो गया। तो क्विकली एक बार डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं हली सर्वेशाम और लोपह शाकल्यस्य का। दोनों का कार्य एक ही है, यह वर्ण का लोप करना। यह वर्ण का लोप करते वक्त हमें क्या कहा था, लोपह शाकल्यस्य ने अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः,
तो जब भी य का लोप करना है, मतलब देवा या इह में जो य का लोप करना है, उसमें य के पहले अपूर्व अवर्ण पूर्वयोग हो, उसके पहले अवर्ण चाहिए, तो देवा आ अवर्ण ही है, दीर्घ अ है। एंड दूसरा बोला था अशी परे, सामने अश प्रत्याहार चाहिए। ऐसे टाइम पे यव लो हो, यव यो हो लोप हो, य और व का लोप होता है, हमें सिर्फ यहाँ पे य ही चाहिए, तो यहाँ पे य लोप हो गया। बट हली सर्वेशाम क्या कहता है? हली सर्वेशाम कहता है कि पहले भो भगो अघो या अपूर्व का शब्द होना चाहिए और उसके सामने हल प्रत्याहार मतलब कोई भी व्यंजन होना चाहिए, तो ही य का लोप होगा। तो ये दोनों के बीच का अंतर है, वो अंडरस्टैंड करना है और हमें अकॉर्डिंग टू सूत्र यूज करना है। डन। तो यहाँ पे दो चीजें बराबर से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो कहाँ पे अतो रोरक प्रता अदप्लुते यूज करना है, दो अ के बीच में विसर्ग आया तो, दो रस्व अ के बीच में विसर्ग आया तो अतो रोरक प्रता अदप्लुते। उसके अलावा अगर अ दीर्घ है यानी आ है और उसके सामने ह्रस्व अ छोड़ के कोई भी अश प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य हम लोग यूज करेंगे। एट द सेम टाइम आगे जाके जब य का लोप करना है, तभी भी ये दो ऑप्शन है, लोप शाकल्यस्य एंड हलि सर्वेशाम। व्यंजन है तो हलि सर्वेशाम आएगा, और व्यंजन के अलावा स्वर है तो हम लोग लोप शाकल्यस्य को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से ये चार सूत्रों को, बहुत थिन लाइन है इनके बीच में, कार्य सेम है, कंडीशन सेम दिखती है, बट फॉलो करते वक्त हमें सोच समझ कर फॉलो करना है कि कौन सा सूत्र कहाँ पे चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।